इधर पढ़ाइएगा, उधर नहीं जाने की जरूरत है। अंदर भी Here, acceleration due to variable speed. Last period we have discussed when the particle moves with constant speed on the circular path, then since speed is constant, but due to change of direction, the velocity changes as a result. Although it is the constant speed that was, but due to that variable changes of the direction, that was accelerated motion, and that acceleration was derived as the centripetal acceleration, and that is equal to v square upon r. Already we have derived it. Here now, if speed is variable on the circular path, then what will be the acceleration? So here we will study acceleration due to variable speed. Here suppose a body moves on the circular path with variable speed. Means suppose a body, how it is possible variable speed? Suppose we are moving on the circular path with accelerated motion, or we are applying a brake, that will be the retarded motion. So in this way we can find this variable speed, and due to variable speed, since you know this, when it is variable speed, then acceleration along by velocity means speed is always tangential to the circular path. So acceleration tangential acceleration is generated in the direction of the variable velocity, and due to continuously change of velocity, and acceleration also acts towards the center, that is known as the centripetal acceleration. So in this case we have the two acceleration, tangential acceleration and centripetal acceleration. Here it's tangential acceleration. And here it is centripetal acceleration. Centripetal, you know it already, we have done it. AC, centripetal acceleration. So, when the body, you can note down, when the body moves on a circular path with variable speed, when a body moves on a circular path with variable speed, then an acceleration is produced, in the direction of variable speed, that is known as the tangential acceleration. And on circular path, due to continuously change in direction, and on the circular path, due to continuously change in direction, and acceleration is produced towards the center, which is known as centripetal acceleration,
Thus, we have the resultant acceleration. Thus, we have the resultant acceleration A is equal to AC square plus AT square. We have the resultant acceleration. ये AT है, ये AC है, तो resultant acceleration हमारा ये हो जाएगा. Thus, the resultant acceleration A is equal to root AC square plus AT square. If the resultant acceleration makes angle theta, if the resultant acceleration makes angle theta with tangential acceleration, makes angle theta with tangential acceleration, then the tan theta is equal to here AC upon AT. AC upon AT. Here you see, if it is AC, so this will be also AC. Tan theta perpendicular upon base. AC upon AT. So theta it is equal to tan inverse AC upon AT. You can note down a numerical question on this basis. I will note it. Yes. Tan inverse. Note down a numerical question. A cyclist is riding. A cyclist. Note down a numerical question. A cyclist is riding. Cyclist is riding with a speed of here. Cyclist is riding with a speed of 27 km per hour. As he approaches a circular turn, on the road of radius 80 meter. Here, velocity is 27 km per hour. Radius R it is equal to 80 meter. 80 meter. He applies brakes and reduces his speed at the constant rate 0.5 meter per second. Reduces his speed at the constant rate 0.5 means here tangential 0.5 meter per second square. Try to understand. 0.5 इस कांस्टेंट रेट से वो रिड्यूस कर देता है. What is the magnitude and direction of the acceleration on the circular turn? What is the magnitude and direction on the circular turn? Here you see, when he takes his circular turn, radius it is given 80. अगर एक्सेलरेट होता तो इस डायरेक्शन में हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेट हो रहा, एटी इधर आएगा. हियर दिस विल बी एसी एंड हियर यू कैन कैलकुलेट एज this is theta. Now here you can find out velocity is equal to 27 km per hour. You can convert into 5/18 meter per second. 9 3 9 2.
means 7.5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो जाएगा. It velocity is. What will be the centripetal acceleration? AC is equal to V square upon R, and here you will calculate 7.5 का square upon 80 meter per second square. You can calculate it. 7.5 upon 80. This meter per second. Clear? And here 80 is given, you have 80. This is equal to 0.5 meter per second square. Then what will be the resultant acceleration? Resultant acceleration A is equal to root AC square plus AP square. You can calculate it. AC square plus AP square. Calculate the value here, AC. And the AP is given 0.5. And in this way here, you can calculate the angle. Tan theta is equal to, it is 80, it is AC. Tan theta is equal to AC upon 80. And here you see 56.25 upon 80 into 80 is 0.5. You can write it in tan inverse, calculate its value. What you get here? इसकी वैल्यू क्या है कुछ पता? 0.703. 0.7. 703. 0.7. अच्छा, तो 7.0 हो जाएगा 0.7, तो ये चलेगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हियर 0.5. So you can find out its value, that is 0.7 upon 0.5. ये हमारे पास tan थीटा, तो थीटा it is equal to tan inverse 7 upon 5. You can calculate in this way, that the 0.7 square plus 0.5 square. So this is the example of the variable speed. Otherwise, if a body moves with the constant speed, then always centripetal force acts. But centripetal acceleration acts only one acceleration. But when it moves with variable speed, there will be two acceleration along the tangential and along the center. So we get the resultant acceleration in this way. And this is the last topic of this chapter. Now the chapter number 5, laws of motion. We will study the laws of motion. You know that motion is produced due to force. When force is the basic cause of motion. So here we will study the force at first. Force, you know that the external cause
which can change the position of an object or try to change the position of an object. फोर्स वह एक्सटर्नल काज है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल सकता है, चेंज कर सकता है, अदरवाइज कैन ट्राई टू चेंज. इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही विल चेंज बट ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. वो हिल गया. हाँ, ये छूने लायक नहीं. थोड़ा बेंड कर. थोड़ा सा दिख रहा है. ठीक दिख रहा है. अच्छा, देखना उसको थोड़ा. लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन में फोर्स इज द बेसिक काज एंड अरिस्टोटल्स फैलेसी की पहले अरिस्टोटल्स फैलेसी इसके रिस्पेक्ट में अरिस्टोटल्स के पहले इसका एक कंसिडरेशन था कि ए कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी in uniform motion. It means for motion a constant force is required. According to Aristotle, a constant force is required to move the body in motion. और यह 2000 ईयर्स तक एक्सेप्ट किया गया था कि हमेशा मोशन के लिए कांस्टेंट फोर्स की जरूरत पड़ती है. गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो ने इसके अगेंस्ट इस फैलेसी को इसने रॉन्ग प्रूव किया और गैलीलियो ने बताया कि नो कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इन मोशन. और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया. एरिस्टोटल फैलेसी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ए कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इन मोशन. According to Aristotle, a constant force is required to move the body in motion. It was acceptable up to 2000 years. It was acceptable to 2000 years. Galileo's law of inertia. Here Galileo's law of inertia. According to Galileo, no constant force is required to move the body in motion. No constant force is required to move the body in motion. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया. अगर इंक्लाइन प्लेन पर अगर एक बॉडी को छोड़ दिया जाए तो ये जो मोशन होता है ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है. स्पीड तेजी से बढ़ेगी ना, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन. लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन पर, थोड़ा देखना, दिख रहा है, अगर इसमें इसको इंक्लाइन प्लेन में अपवर्ड डायरेक्शन में अगर भेजा जाए तो ये रिटार्डेड मोशन होगा. रिटार्डेड मोशन. This is accelerated motion, this is retarded motion. But when body, when it moves on a
smooth surface, then it will move with uniform motion. Uniform motion. It means no continuous force is required to move the body on a smooth surface. Once a force is applied, body will move continuously without any constant force. अगर जैसे एक लेक हो, अगर जाड़े में जम जाए तो जनरली उसे फ्रिक्शनलेस माना जाता है। अगर एक व्यक्ति को पार करना हो झील को और वह एकदम पैरालाइज्ड है, नहीं, उसे अगर एक छींक भी आ जाए तो वह छींक, एक्शन का रिएक्शन, वह ड्राइविंग फोर्स पूरी झील को पार कर देगी दूर तक, मतलब फ्रिक्शनलेस। वो फ्रिक्शनलेस माना जाता है। मतलब वो जैसे अरिस्टोटल ने बताया कि कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड। उसने कहा हमेशा, एक्चुअली इसने जो बताया था यह, इसलिए यह एक्सेप्टेबल क्यों है, क्योंकि अब तक 2000 वर्ष तक इसलिए माना जाता रहा कि जमीन फ्रिक्शनलेस नहीं। ये केस आइडियल केस में है, जब एकदम स्मूथ है। इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन नो कंटिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इन मोशन। ये केस जो था ये हर स्थिति में बताया गया था, इसलिए इसे फलेसी माना गया। ये सिर्फ एक कन्वेंशन मान लिया गया इसे। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नो कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इन मोशन इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ये इस बेस पर इसने बताया था अपने लॉ को, और ये एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे भी सरफेस एकदम स्मूथ है, इस नाते उसे एक्सेप्ट किया गया। इसी के बेस पर इनर्शिया क्या होती है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? Tendency to motion of the व्हाट इज टेंडेंसी? cause. एनीवन नोज अबाउट द, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? सब्सटेंस tendency to oppose the motion or being changed from the rest. ठीक है, कुछ कुछ सब लोग जानते हैं। इनर्शिया मीन्स body, you know this, if body is rest, it cannot change its state of rest. When it is moving and if no external force is applied, it will move continuously with the uniform speed on a frictionless surface. It will move continuously. मतलब बॉडी की वो टेंडेंसी जिसके कारण वह अपने आप पोजीशन को बदल नहीं सकता। अगर वह रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो हम डिफिनीशन इसकी देते हैं कि इनर्शिया, इट इज द, नोट डाउन, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच, it is the inability of the body by virtue of which body cannot change its state of rest or uniform motion. It is the inability of the body by virtue of which body cannot change its state of rest or uniform motion. ये इनर्शिया होता है, ये इनएबिलिटी होती है। टेंडेंसी भी कहते हैं कि टेंडेंसी ऑफ द बॉडी दैट इज इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। वह अपनी पोजीशन अपने अनुसार, हर बॉडी की जनरल टेंडेंसी होती है। इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया को 3 तरह से डिफाइन किया गया है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो थोड़ा सा इनर्शिया हम जानेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, here inertia of rest means
if the suddenly if a bus is at rest, when the driver suddenly accelerates the bus, we move backward. क्यों ऐसा होता है? जैसे बस अगर खड़ी है, पूरी बॉडी रेस्ट पे है, बस भी रेस्ट पे है, जैसे ही उसे चला दिया जाता है, एक्सेलेरेट किया जाता है, हमारा नीचे वाला पार्ट मोशन में आ जाता है बस के जो कांटेक्ट में है। अपर पार्ट हमारा रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण तुरंत चेंज नहीं कर पाता उसके साथ और हम पीछे गिर जाते हैं। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ये भी देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। क्यों? इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं। जब हमने फोर्स लगाया ये मोशन में आ गया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट दे कम डाउन। क्लियर? ये नीचे चले आते हैं। ऐसे ही अगर एक ट्री है, अगर नीचे से हिला दिया जाए तो फल उसके नीचे गिर जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि पूरा बॉडी मोशन में आ जाती है, जो फल हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट पे बने रहते हैं और सब मोशन में आ गया और तुरंत अपनी पोजीशन को बदल नहीं पाते और नीचे आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। तुम लोग 9th में पढ़े होंगे कि वो एक टम्बलर लेते हैं, उस पर एक कार्ड रख देते हैं, उस पर कॉइन रख देते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो कॉइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण उसमें चला जाता है, जबकि वो कार्ड मोशन के कारण बाहर चला जाता है। ये सब 9th में पढ़े रहे होंगे। तो ये हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। A body cannot change its state of rest. इसी तरह से inertia of motion, a body cannot change its state of uniform motion. It is the inertia of motion. इसका भी एग्जाम्पल है कि अगर बस अगर चल रही है, ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, तो जो बॉडी कंटैक्ट में है बस के वो तुरंत रेस्ट पे आ जाता है, अपर पोर्शन इन मोशन, सो इट मूव फॉरवर्ड। हम रुक गया तो हम आगे चले जाते हैं। ये हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। कभी देखें वो बस अगर जैसे चलते हैं, अगर जब ही लगाता अगर हम रुकते हैं, चलती हुई बस में अगर हम उतर रहे हैं, अगर हम बस की डायरेक्शन में न मूव करें तो हम गिर जाते हैं। उसका रीज़न ये भी कि बस मोशन में है तो हम भी मोशन में हैं, पूरी बॉडी मोशन में। जैसे ही हम रुकते हैं, अगर हम उल्टे जाना चाहें कभी नहीं जा पाएंगे, हमें उधर ही चलना पड़ता है। बस की डायरेक्शन में थोड़ी देर दौड़ें, अगर ये ट्रेन वगैरह पे जो चना वगैरह बेचने वाले होते हैं, ट्रेन चलती रहती है ना, तुरंत चढ़ जाते हैं, तुरंत उतर जाते हैं और उतर करके कभी उल्टे नहीं, एक्सपर्ट होते हैं। साइंस भले नहीं जानते लेकिन साइंस का पूरा यूज करते हैं। ये चूँकि वो मोशन में है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, पूरी बॉडी मोशन में है, इतना चना लेकर के गले में लटकाए हुए कूद पड़ते हैं और फिर दौड़ते हैं उधर। जब वो फिर अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाते हैं, तब फिर नॉर्मल स्पीड से नहीं, तुरंत दौड़ते हैं, तब मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी हमारी मोशन में होती है, तुरंत गिर जाएंगे। तो ये जो है, जो पॉकेट मार होते हैं बस के, उन्हें भी पता होता, बस या ट्रेन के, वो यही काम करते हैं कि उनको पता है कि टारगेट बना लेंगे, यही बैग लेके भागना, और खिड़की खुला रहे दरवाज़ा, और इसके बाद तुरंत लेकर जैसे चलना शुरू हुई, थोड़ा मोशन में ट्रेन की तरफ भागते हैं। ऐसा नहीं ट्रेन से अपोजिट भागे ना, ट्रेन की तरफ चलते हैं। क्या कर लोगे, ट्रेन चल रही है, कुछ कोई कर नहीं सकता। उन्हें पता है कि इनर्शिया ऑफ मोशन का यूज करना है, और जितनी तेज जितना मोशन ट्रेन का लगभग उतने मोशन दौड़ने का प्रयास करते हैं, तो गिरते नहीं है। इनर्शिया ऑफ मोशन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि बसेस अगर चल रही हों, अचानक अगर ब्रेक अप्लाई किया जाए तो वी मूव फॉरवर्ड, वी फॉल फॉरवर्ड, बिकॉज द बॉडी विच इज इन कंटैक्ट विद द बस दैट कम टू रेस्ट एंड द अपर पार्ट इन मोशन एंड मूव फॉरवर्ड। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन
A body cannot change its state of, a body cannot change itself, the direction. Direction of motion. A body cannot change its direction of motion itself. It is known as the inertia of direction. लगेज को हमेशा बांध दिया जाता है बसेस पे. लगेज आर ऑलवेज टाई. अगर ऊपर से हैं, ऊपर है, क्योंकि व्हेन इट बस टेक्स ए शार्प टर्न, लगेज मूव्स अवे फ्रॉम द बस. उसी डायरेक्शन में, वो अपना डायरेक्शन तो बदल नहीं सकता, तो उसी डायरेक्शन में चला जाए, सिर्फ बांध के रखा जाता है ताकि सेफ्टी मेंटेन रहे. तो ये सब हमारे पास है इनर्शिया. और इनर्शिया के बेस पर हमारा इनर्शिया, और ध्यान में रखना, इनर्शिया इज मेजर्ड बाय द मास. मास मेजर्स द इनर्शिया. लार्जर द मास, लार्जर विल बी द इनर्शिया. अगर मास जितना अधिक है, इनर्शिया उतने अधिक होगी, क्योंकि उसको चेंज कराने के लिए हमको उतने ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है. सो मास मेजर्स द इनर्शिया. Inertia is measured in terms of the mass. Here this is the laws of motion. Newton's laws of motion. We will study the Newton's laws of motion. न्यूटन ने लॉ दिया इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, या लॉ ऑफ मोमेंटम, एक्शन रिएक्शन रूल. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है हमारा, ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless external force is applied. A body cannot change its, note down the first law of motion. A body cannot change its state of rest or uniform motion until and unless external force is applied. Law of inertia ये भी है. Newton's laws of motion. A body cannot change its state of rest or uniform motion until and unless external force is applied. सिंपल वही लॉ ऑफ इनर्शिया ही है. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में है, अगर मोशन में है तो मोशन में है. तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए एक्सटर्नल. तो ये हमारा है. और लॉज ऑफ मोशन पर ही हमारा ये है कि हॉर्स राइडर अगर चल रहा है, हॉर्स दौड़ रहा है, अचानक हॉर्स रुकता है तो हॉर्स राइडर आगे की तरफ गिर जाता है. ऐसे ही अचानक हॉर्स पे बैठा, अगर अचानक हॉर्स चल दिया तो पीछे गिर जाता है. ये सब वही सब एक्टिविटी है जो एग्जाम्पल्स हैं जो बसेस के रेस्पेक्ट में हम लोग देखे हैं कि बस चल रही है, अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो आगे गिरते हैं. तो ये सब यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, इसमें तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है. सर एरिस्टोटल और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में डिफरेंस क्या था? नहीं, एरिस्टोटल का तो बहुत अंतर है. एरिस्टोटल ने तो बताया कि कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इन मोशन. हमेशा एक कांस्टेंट फोर्स की जरूरत पड़ती है. लेकिन गैलीलियो को सपोर्ट किया. गैलीलियो के लॉ को ही न्यूटन लॉ कर सकते हैं. गैलीलियो, एरिस्टोटल का तो विरोध इसलिए किया गया, उसने केवल इतना बताया था कि अगर बॉडी मोशन में है तो एक कांस्टेंट फोर्स की जरूरत पड़ती है. लेकिन उसने उसमें फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया. बस उसी चीज़ को इसने कंसीडर कर लिया कि इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन नो कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इन मोशन. और इसने भी लॉ, न्यूटन ने उसी गैलीलियो के लॉ को, वो भी लॉ ऑफ इनर्शिया था, उसी लॉ को इसने 3 लॉ में बांट दिया. एक था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, एक है सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ देख लेना. अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ
Newton's second law is based on the momentum. So at first we have to know what is the momentum. Anyone knows about the momentum? Product of mass and velocity. Product of mass. How can you define the momentum? You know that product. Change in velocity with respect to mass. No. एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ जैसे फोर्स है F इक्वल टू एम ए, हम फार्मूला न हो गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम का रियल मीनिंग क्या है? हम मास इनटू वेलोसिटी ये तो ठीक है, तो फार्मूला हो गया, ये P इक्वल टू एम बी होता ही। मोमेंटम वास्तव में है क्या? अभी हमारे पास ये डस्टर है, ये ऐसे अगर है तो केवल इसमें मास है, नो वेलोसिटी, मतलब डेड है, चल नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसे चल जाए तो मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो वेलोसिटी कंटेन्ड इन ए बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम। ध्यान में रखना, कोई बॉडी अगर वेलोसिटी उसमें जनरेट हो जाए तो मोमेंटम, ये भी डेड बॉडी है, इसमें जान आ जाती है जब मोशन आ जाता है, और तब यह कुछ कर सकता। अभी हम ऐसे लिए तो नहीं डरोगे, अब ऐसे चला दें डर जाओगे। क्यों? बिकॉज इट हैज द मोमेंटम। ट्रक है, खड़ी है, कोई डर नहीं, आगे पीछे चलते हैं, कोई बात। जैसे चलने लगता है उससे डरने लगते हैं, क्योंकि मास तो बहुत बड़ा है पता, लेकिन उसमें मोमेंटम आ जाता है। अभी पहाड़ हैं ऐसे पड़े हुए, जब लैंडस्लाइड होता है तो उस मास का कितना निगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, लाइक मोमेंटम आ जाता है। तो लिख सकते हो मोमेंटम की डिफिनीशन, द वेलोसिटी कंटेन्ड इन ए बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम। वेलोसिटी कंटेन्ड इन ए बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम। It is the product of mass into velocity. It is the product of mass into velocity. इसकी SI यूनिट पता ही है, kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास हो गया न्यूटन्स का सेकंड लॉ का। मोमेंटम पर भी तो ये सेकंड लॉ नहीं है, मोमेंटम है। और मोमेंटम जितनी तेजी, मास तो बदल नहीं सकता, वेलोसिटी बदलेगी, और वेलोसिटी बदलेगा तो मोमेंटम तेजी से बदलेगा।